اس سے بڑا مذاق میرے ساتھ زندگی کیا کرے گی؟ میں بیڈ پر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ زندگی نے مجھے کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ آج اتنے ارمانوں کے بعد جب میری شادی ہوئی تو وہ بھی ایک ایسے لڑکے سے جسے میں نے خود پال پوس کر بڑا کیا تھا، جو کہ مجھ سے تقریباً 10 سال چھوٹا تھا۔ زندگی واقعی انسان کو مذاق بنا کر چھوڑ دیتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ میں خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میری شادی کسی اچھے گھر میں ہوگی اور اچھے انسان سے ہوگی، پر پھپھو نے میری شادی اپنے 13 سال کے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ پر یہ ہوا کیسے، یہ بھی ایک دلکش کہانی ہے۔ وہ ایک سرد بھری رات تھی جب میں پیدا ہوئی۔ میری رونے کی آواز سن کر میری پھپھو نے یہی کہا تھا کہ یہ تو کسی چمگادڑی کے بولنے کی آواز ہے، یہ انسان کی نہیں لگتی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ہنسنے لگے۔ یہ بات مذاق سے زیادہ میرے لیے اس وقت حقیقت بن گئی جب میری ماں میری پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی، اور پھر انہوں نے مجھے منحوس مشہور کر دیا۔ جو بھی میرے گھر آتا میری بوا اسے یہی کہتی کہ یہ بڑی منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کی اپنی ماں مر گئی۔ تو سوچ اب یہ ہمارے گھروں میں کیا تباہی لائے گی۔ مجھے تو کوئی بھی اپنا گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر میری بڑی بوا کو ان کے شوہر نے زور دیا کہ تم اس طرح اپنی بھتیجی کو اکیلے مت چھوڑو، تمہیں چاہیے کہ تم اس وقت اس کی مدد کرو۔ بیچاری ابھی ناعمر ہے، ابھی پیدا ہوئی ہے، تو وہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ بس اس لیے میں منحوس مشہور ہو گئی، کیونکہ میرے پاپا تو میرے آنے سے 3 مہینے پہلے ہی مر گئے، اور شاید اس سب کی وجہ سے امی پریشانیاں جھیل کر میری پیدائش پر چل بسیں۔ نہ جانے کس کے مذاق اور کس کی حرکت سے وہ کیا جانے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے بوا نے پال پوس کر بڑا کیا۔ جب میں 6 سال کی ہوئی تو گھر میں خوب دولت آنے لگی۔ اب وہ گھر میں اس قدر دولت اور ریل تیل دیکھ کر خاندان کے سبھی لوگوں کے لیے میں اچھی ہو گئی، کیونکہ میرے گھر میں آنے سے ہی یہ دولت آئی تھی۔ وہ سب یہی کہتے کہ یہ تو بڑی خوش نصیب نکلی ہے۔ میں تو بڑی بدقسمت سمجھتی تھی، پر دیکھو تو صحیح، اس کے آنے سے میرے گھر کے حالات سدھر گئے ہیں، شاید اس کی دعا لگ گئی ہے۔ میں بوا کی باتیں سنتی تو حیران رہ جاتی۔ پہلے تو بوا مجھے مہمانوں سے منحوس کہتی تھی، اب اچانک ہی میری تعریف شروع کر دی۔ شاید ایسا ہوتا بھی نہ اگر درمیان میں ایسا واقعہ نہ ہوتا، کیونکہ مجھے میری خالہ اپنے گھر لے گئی، پر جس دن سے وہ مجھے اپنے گھر لے کر گئی تھی میری بوا کے گھر میں نقصان ہو رہا تھا، اور روز روز ایسا نقصان ہوتا کہ بوا کو سمجھ نہ آتا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے۔ آخر انہوں نے اندازہ لگایا کہ میرے جانے کے بعد یہ سارے نقصان ہو رہے ہیں، تو بوا نے اپنے کان پکڑ لی اور بولی کہ اب تو میں اس لڑکی کو یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ ایسا ہی ہوا، جب وہ مجھے واپس اپنے گھر لے آئیں تو گھر میں ہونے والے نقصان میں کمی ہونے لگی، بلکہ وہی نقصان فائدے میں بدلنے لگے۔ میری بوا کو یقین آیا کہ واقعی یہ لڑکی تو مبارک قدم والی ہے، آئندہ سے گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ اور پھر بوا نے جو کچھ شروع کیا وہ میرے لیے ایک نئی مصیبت تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ اب میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گی، پر انہوں نے مجھے سونے والی چڑیا سمجھ لیا اور دن رات میری حفاظت کرنے لگی کہ میں کہیں کسی سے بات چیت نہ کروں۔ بوا کہتی کہ میرا کوئی بیٹا تیرا ہم عمر ہوتا تو میں اس کے ساتھ تیری شادی کر دیتی۔ بوا کے بار بار کہنے کے باوجود بھی میرا دھیان اس طرف نہیں گیا۔ بوا مجھے کیا کہنا چاہتی تھی؟ ابھی بوا کا بیٹا صادق تقریباً 13 سال کا تھا اور میں 23 سال کی۔ ایک دن میری خالہ گھر آئی اور ڈائننگ روم میں بیٹھی ہوئی بوا سے باتیں کر رہی تھی۔ شاید بوا سے میرا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے ارسلان کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ ارسلان تقریباً 26 سال کا تھا اور نوجوان تھا، اس کی ایک بینک میں نوکری بھی تھی۔ خالہ نے بوا سے پوچھا کہ آپ نے اس کا رشتہ کر دیا ہے یا نہیں، تو بوا بولی کہاں، میری بیٹی کا رشتہ تو کب سے ہو گیا ہے، اب اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھیے۔ یہ سن کر خالہ حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ یہ بھابھی آپ نے بیٹی کا رشتہ کہاں طے کیا، تو ابھی تو اس کی عمر اتنی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی میں نہیں، اس کا رشتہ جہاں بھی طے کیا ہے، تم لوگوں کو اس کی خبر لینے کی ضرورت نہیں۔
जब ये छोटी थी तो उसको पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, अब उसका रिश्ता भी मैं ही करूंगी। खाला पूछने लगी कि बहन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, मुझे वैसे ही बता दो कि तुमने इसका रिश्ता कहाँ तय किया है। तो बुआ ने जो बात बोली उसे सुनकर मैं हैरान हो गई, बल्कि मुझे रोने पर भी मजबूर कर दिया। बुआ बोली, मैंने सईदा का रिश्ता अपने बेटे सादिक के साथ किया है। यह सुनकर मेरी तो जैसे नींद उड़ गई। मैंने कहा, आप ये क्या कह रही हैं? मैं भी अपने पर्दे के पीछे से निकलकर डाइनिंग रूम में आकर बुआ के सामने खड़ी हो गई। तू हमारी बातें सुन रही है? बहुत शौक है तुझे शादी करने का, बुआ ने मुझे गुस्से में कहा। ऐसी बात नहीं है बुआ, लेकिन आप मेरा रिश्ता 13 साल के बेटे से तो ना करें। मेरी बात सुनकर वे हंसने लगी और कहने लगी, अरे भाई क्यों ना करूं, तू इतनी मुबारक है, मेरे लिए तो सोने की चिड़िया है। मैं तुझे इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। बुआ खुदा के लिए मेरी जिंदगी तबाह ना करें। अपने से 10 साल छोटे लड़के को कैसे शौहर मान लूं? मैंने चिल्लाते हुए कहा। तो बुआ ने मेरे जबड़े पकड़ लिए और बोली, आइंदा अगर तूने ऐसी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे 10 साल छोटा नहीं है, वे 17-18 साल का लगता है, और अब तू भी अभी जवान है। मैं बहुत ज्यादा समझदार थी। कहने लगी, अभी तो मैं जवान हूँ, कल को जब मैं 30 साल की हो जाऊंगी तो आपके बेटे की जवानी भी अभी शुरू होगी, तब वह क्या करेगा? बुआ को जरा शर्म न आई, बोली कि कोई बात नहीं, एक शादी उसकी तेरे से छोटी लड़की से भी करा दूंगी। मैंने कहा, वे मैंने आखिर ऐसा क्या कसूर किया है कि आप मेरी शादी कैसे लड़की के साथ कराएंगी जो बाद में दूसरी शादी करे? बुआ के सर पर मगर भूत सवार था। वे कह रही थी कि तुमसे शादी करना मेरे बेटे की मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा ये घर बनहोश हो जाता है। मैंने कहा, वे आप मुझे अपने घर में ही रखें, पर मेरी शादी अपने बेटे से ना कराएं। बुआ बोली कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे तू हाथ से निकल जाएगी। मैं उन सब पर भरोसा नहीं करती, जल्दी जल्दी तेरी शादी कराऊंगी। बुआ की बातें सुनकर मैं रोने लगी। मेरी खाला ने मुझे तसल्ली दी और वहां से चली गई। वह और भी क्या कर सकती थी, मगर उससे पहले कि वह कुछ और होता, पूरे खानदान में बात फैलती गई। बुआ ने एक अनोखा कारनामा यह किया कि उस रात को मौलवी साहब को बुला लिया और कहने लगी, चलो तुम दुल्हन वाले कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ। बुआ की बातों से मैं समझी नहीं थी, मगर देखा तो बुआ अपनी आंखें निकाल कर खड़ी मुझे निकाह के लिए कह रही थी कि मैंने कहा, बुआ मैं निकाह नामे पर दस्तखत नहीं करूंगी तो मेरी शादी नहीं होगी। तब बुआ ने एक ऐसी बात बोली जिससे मेरा कलेजा छलनी कर दिया। बोली कि तेरी माँ भी ऐसी ही थी और तू भी ऐसी निकली। तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगी अगर तूने मेरे बेटे से शादी नहीं की। तू खुद को समझती क्या है? बहुत हूर परी है कोई जो मैं तेरे ऊपर मरी जा रही हूँ। यहाँ से गई तो किसी और के घर भी नहीं जाएगी, यह बात मेरी लिख कर ले ले। मेरी बुआ ये बातें करती मुझे किसी डायन से कम नहीं लग रही थी। फिर मैंने सर झुका लिया। मेरे फूफा आ गए, उन्होंने भी कोई एतराज नहीं किया। बोले कि मेरी बीवी इस तरह के कामों में जल्दबाजी से काम नहीं देती है। अगर बेटी उसने तुम्हें खुशनसीब समझकर अपनी बहू बनाने को कहा है तो कोई बात नहीं, तुम इस फैसले को कबूल कर लो। और रही बात दूसरी शादी की, तो मैं जब तक हूँ तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ में ही रहेगा। अल्लाह तुम दोनों को लंबी जिंदगी दे। मैं अपने बेटे को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। मैं उससे इस बात का पाबंद बनाऊंगा कि वह सिर्फ तुम्हारा बन कर रहे, और यह बात निकाह नामे भी लिखवा दूंगा। मैं थोड़ी संतुष्ट हो गई कि चलो मेरा शौहर अगर दूसरी शादी करेगा तो ये घर गाड़ी बंगला सब मेरे नाम हो जाएगा। मैं इस रिश्ते पर राजी हो गई कि अच्छा चलो मेरे लिए तो जिंदगी आसान ही होगी। मैंने अपने शौहर को अपने से कम उम्र होने की वजह से दबा कर भी रखना था। वह मेरी हर बात मानता और यूं जिंदगी आराम से ही गुजर बसर हो जाती। खैर मेरा निकाह कर दिया गया। अब मेरा शौहर मेरी बुआ का 13 साल का बेटा बन चुका था। मुझे उससे कोई डर नहीं था। जानती थी कि वे कम उम्र है, छोटा बच्चा है, कभी भी मेरे सामने तनकर बात नहीं कर सकेगा। पर मैं ये नहीं जानती थी कि मर्द तो मर्द होता है, फिर चाहे वे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, फिर बूढ़ा हो, फिर वह अपनी फितरत से बाज नहीं आता। मैं अपनी बुआ से मिलकर अपने कमरे में चली गई। मैंने दुल्हन वाले सुर्ख जोड़ा पहना हुआ था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और ऐसी शान के साथ मेरा पति अंदर दाखिल हुए और उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, पर कद लंबा था, जो लगते थे 18 साल के। कमरे में दाखिल हुए तो उसने मेरी तरफ देखा और बोला, सईदा तुम बड़ी खूबसूरत हो। मेरा दिल तो नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
मैं उसकी तरफ हैरान होकर देखने लगी। सादिक, कहाँ चलना होगा? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? चुप होकर सो जाओ, काफी रात हो गई है। मैं ऐसे बच्चों की तरह डांटने लगी। मुझे आज भी वह वक्त याद था जब मैं उसे ऐसे ही डांट डांट कर होमवर्क करवाया करती थी और उसे कभी कभी खाना भी अपने हाथों से खिलाया करती थी। और आज वही मेरा शौहर बन बैठा था। मैं अपनी किस्मत पर हंस रही थी क्योंकि ये सब जो हो रहा था ये मेरी सोच समझ से बाहर था। बहरहाल मैंने सादिक से कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं चाहती थी कि वे बिगड़ जाए, खामोश मुझसे किसी बात का बदला निकालने लग जाए। मैं तो उसकी बड़ी बहन की तरह थी। खैर, फिर वह बेड पर आकर बैठा और मुझे एक ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। मेरे सामने नजरें झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो सईदा बाजी, आपको लालच में आकर मेरे साथ निकाह कर दिया गया है। माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाजी, मैं जब से बड़ा हुआ हूँ आपको मैंने अपनी स्वागत करते ही देखा है। आपने मुझे माँ बनकर पाला है। अब अगर आपसे शादी का रिश्ता निभाऊंगा तो ये तो ऐसा ही हो जाएगा कि माँ बहन का रिश्ता नापाक हो गया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। बाजी, मैं आज भी पहले ही की तरह हूँ। अगर आप चाहें तो उस बात की तहकीकात कर सकती हो। आप बस कुछ दिन रह कर देखो, मैं आपको हाथ तक नहीं लगाऊंगा, ना ही आपको कोई ऐसी बात करूंगा। हम बहन भाई की तरह रहेंगे। फिर एक रात आपको मेरे साथ चलना होगा और वह रात आज की ही रात है। एक तरफ सादिक मुझे बहन कह रहा था, दूसरी तरफ रात को मुझे अपने साथ चलने को कह रहा था। मैंने कहा, सादिक, मैं समझी नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तो बहुत परेशान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और तुम होकर मुझे यहाँ से भी चलने को कह रहे हो। सादिक मेरे सर पर दिलासा देकर बोला, मैं छोटा हूँ पर तुम्हारी बात तो कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। मैं तुम्हें जहाँ लेकर जाऊँगा उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ और परेशानी नहीं आएगी। तुम चलो बस, मैं तुम्हें यहाँ से निजात दिलाऊंगा और उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगी। यह कहकर मुझे उसने मेरी चादर ला कर दी और कहा कि लो, और वैसे जोड़ा भी रहने दो, उसको उतारना नहीं। मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं उतारना। मेरे साथ ही गाड़ी में बैठो और अभी उस घर से निकलते हैं। खैर, मुझे सादिक अपनी गाड़ी में बिठाकर बाहर ले आया। सादिक की छोटी सी उम्र में गाड़ी चलाना भी आता था। मैं हैरान थी कि सादिक किस कदर मेहनत से गाड़ी चलाता है। काफी देर गाड़ी चलाने के बाद उसने गाड़ी एक जगह रोक दी और एक शख्स को फोन करने लगा। हाँ साकेत, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से कोई बंदा उस जगह का पता बताने लगा तो सादिक ने कार उस तरफ मोड़ दी। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम लोग एक मस्जिद के बाहर पहुंच गए। मैंने देखा मस्जिद में बल्ब की रोशनी अभी तक चमक रही थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मस्जिद दुल्हन की तरह सजी हुई थी। मैं वहां से गाड़ी से उतरकर अंदर आई। सादिक मुझसे कहने लगा कि मैं आपको अल्लाह के घर में ले आया हूँ, अब से आप यहीं रहेंगी। मैंने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सादिक, अल्लाह के घर में एक दुल्हन का क्या काम है और मैं यहाँ क्यों रहूँगी? मुझे यहाँ कौन रहने देगा? मस्जिद में तो सिर्फ मर्द ही आते हैं। तब वह हंसकर बोला, ऐसी बात नहीं है बाजी, मैं यहाँ पर आपको इसलिए नहीं लाया, बस आप अंदर आएं, आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। मैं अंदर गई तो देखकर हैरान रह गई कि मस्जिद के एक कोने की बड़ी ही खूबसूरती से उसे सजाया गया था। रोशनी जगमग आ रही थी और सफ़ेद कपड़ों में एक नौजवान भी बैठा हुआ था जिसने अपनी नज़र झुका रखी थी। ये क्या है? मैंने परेशानी से सादिक को सवाल किया और वह बोला, ये आपका शौहर है। ये तुम क्या कह रहे हो सादिक? ये शख्स कौन है? मुझे सब बताओ। देखो बाजी, मैं तुम्हें किसी जगह पर भी ले जा सकता था, पर इस वक्त तुमको ये लगता है शायद मैं तुमसे कोई धोखा कर रहा हूँ या तुम्हें बेच कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गवाह बनाकर अल्लाह के घर को गवाह बनाकर यहाँ लाया हूँ ताकि तुम्हें मुझ पर कोई शक नहीं रहे और बाद में तुम क्या समझो कि मैं तुम्हें बेच कर चला गया। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी शादी करवाने के लिए लाया हूँ और तुम देख लेना, ये जवान जिसका नाम साकिब है ये बहुत ही उम्दा तबीयत का मालिक है, बहुत नफीस है। तुम इसके साथ रहोगी तो जिंदगी भर गम को भूल जाओगी। ये मेरा भी उस्ताद है। सादिक ने मेरी तरफ देखा और बोला, मैं आपको होशो आवाज में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। यह सुनकर मेरे हवास पर बिजलियां गिर पड़ी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि सादिक मुझे तलाक दे या ना दे। फिर ये लफ्ज़ ही अजीब सा लगता था, जैसे अब वह मुझसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। कहने लगा, मेरा और आपका सफ़र यहीं तक था।
अब आपको बाकी सफ़र आपको खुद तय करना होगा। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस नौजवान के सामने लेकर गया और मुझे वहाँ बैठा दिया। अगले ही लम्हे हुजरे से एक मौलवी साहब आया, वह भी मेरे सामने बैठ गए। बोले कि बेटी, तुम अपनी तरफ से इस शख्स को वली मुकर्रर करती हो? मैंने कहा जी हाँ, ये तुम्हारा निकाह पढ़ाएगा। मौलवी साहब ने कहा कि मैं हैरान रह गई कि सादिक कब से इतना जिम्मेदार हो गया कि मौलवी साहब ने मेरे निकाह साकिब के साथ पढ़ा दिया। साकिब मेरा शौहर बन गया। जब मैंने साकिब को पहली बार गौर से देखा तो मैं उसकी आंखों में डूब गई। वह बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और खूबसूरत और दीनदार इंसान लगता था। उसे देखा तो मुझे लगा जैसे यही मेरा शौहर बनने के लायक हो। सादिक मेरी ज़िंदगी से जा चुका था, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था, ताल्लुक़ की कोई गुंजाइश भी नहीं थी जो पूरी होती और फिर मेरा निकाह दूसरे लड़के के साथ करवाया जाता। अब साकिब मेरा शौहर बन चुका था। सब मर्द उठकर एक दूसरे को गले मिले। साकिब बोला कि मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। मुझे आपके कजिन ने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि आपकी बुआ आप पर जुल्म करती हैं और आपकी शादी भी उसने अपने 13 साल के बेटे के साथ करनी चाहती हैं। सादिक आपकी बहुत इज्जत करता है, वह हमेशा ही आपका नाम बड़े अदब से लेता है। बस एक बार तो एक लड़की से आपकी वजह से उसने खूब लड़ाई की थी। सादिक आपको शुरू से ही अपनी बहन मानता है, पर आपकी बुआ जान ने आप लोगों को शादी के रिश्ते में बांध दिया, क्योंकि सच तो ये है कि सादिक एक और लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। सादिक ने भी इस बात में सिर हिला दिया और बोला, अब भी बस आप इसी शौहर के साथ रहेंगी, सारी जिंदगी यहीं गुजारेंगी। बुआ आपको कुछ नहीं कहेंगी, उन्होंने आपको मेरे हवाले किया था। अब मैं जानूं और मेरी ज़िंदगी में जो चाहे करूं, वह मुझे कुछ नहीं कह सकती, ना मुझे पाबंद कर सकती हैं कि मैं किसी के साथ शादी करूं या ना करूं, किसी को छोड़ूं या ना छोड़ूं। सादिक ये कहकर उठ गया। साकिब ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चलो अब घर चलते हैं, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक राज बताना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं सादिक के जाने के बाद परेशान थी। नए लोग हैं बल्कि अजनबी हैं, कहीं मेरे साथ धोखा ना करें, मेरे साथ कोई शर्म ना करें। पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे अंदर कमरे में ले गए और कहने लगे कि आज से ये घर तुम्हारा है। बस एक राज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वह ये है कि मेरी पहले भी एक शादी हुई, लेकिन मैं सुनकर दिल बर्दाश्त आ गया। या अल्लाह, मेरे जिस खौफ से सादिक से शादी न की थी वह खौफ यहाँ भी मेरे सर पर मंडरा रहा था। फिर साकिब ने अगली बात शुरू की। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, वह एक अमीरजादी थी, पर उसे शायद मेरी शादीशुदा ज़िंदगी पसंद नहीं आई। एक दिन मुझे छोड़कर चली गई। मैंने भी उसे तलाक दे दी और अब मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला था। मैं शायद ज़िंदगी भर शादी ना करता, क्योंकि मोहब्बत करने के बाद इंसान में किसी दूसरे को चाहने की गुंजाइश नहीं रहती। पर जब मैंने सादिक के मुंह से आपकी सारी कहानी सुनी तो मैं मजबूर हो गया कि मैं आपका सहारा बनूं। यह कहकर साकिब ने मेरा हाथ पकड़ा और हमने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हुई। मेरी ज़िंदगी उनके आने के बाद बहार हो गई। मैं सभी लड़कियों से यही बात कहती हूँ कि सब्र का दामन हाथ से कभी ना छोड़ें और अल्लाह से शिकवा करें, क्योंकि अल्लाह जो हमारे लिए लिखता है वह बहुत ही अजीम और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये हम ही हैं जो अल्लाह के दिए हुए जिसको और अल्लाह के लिखे हुए मुकद्दर को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।